Good morning, students. Today we will learn about the procedure of framing laws by the Parliament. Parliament make laws for the central government, means for the whole country, and subjects contained in the central list, and at the time of emergency it make laws on subjects from the state list. The bills are presented in the Parliament. They are of two types, ordinary bills and money bills. Ordinary bills can be introduced in any of the houses, means either in Rajya Sabha or in Lok Sabha. But money bills are always introduced in Lok Sabha only. It is not introduced in Rajya Sabha. And this is very important. You know about that money bills are never introduced in Rajya Sabha. They are only introduced in Lok Sabha. Now we will see about the procedure of passing a bill. You must know the difference between bill and law. A bill means a bill is a proposed form of law under consideration by a legislature. A bill does not become law until it is passed by the legislature and approved by the president. And now the process of or the procedure of a law is start. First reading or presentation of the bill. Any member of parliament can be present a bill prior to giving 1 month's notice and with permission of chairman of Rajya Sabha or speaker of Lok Sabha. Means a member of Rajya Sabha, if he introduces the bill in Rajya Sabha, then he must took permission from the chairman of Rajya Sabha. And if the member of Lok Sabha introduced bill in Lok Sabha, then he or she must took the permission of speaker of Lok Sabha. At the time of first reading, only the heading of the bill is read. No discussions take place in first reading. After presentation of bill, it is presented or published in the Gazette of India. Gazette or Gazette means a journal or newspaper published by government. Now, the second stage is known as second reading. Copies of the bill are distributed among the members. At this stage, every aspect of the bill is not discussed. Only the main features, means only basic things are discussed. In this stage, no changes are suggested by the members. Now the third stage or the third thing is committee stage. And what is this committee stage? It is important stage because for debate on every aspect of bill is discussed in this stage, and for this the house is divided into small committees, and the work of these committees they discuss the every aspect of bill in this stage. And already you know that the members are divided into small committees, and one committee they only look after the one aspect of bill. In this way the members are divided into committees in this stage, and therefore this stage is known as committee stage. And in this stage, every para of the bill or every aspect of bill discussed.
If the members thought that they wanted the guidance of a subject specialist for this, they can consult with them. Committee has powers to make changes in the bills. Then they submit their reports to the chairman or speaker. Now the another stage or the another process is known as report stage. Copies of the report of the committee along with the changes suggested are given to the members of the house. Discussions take place in the house on every aspect of the bill. Then in the end voting takes place. And after voting, this bill is going to the next stage, and that is known as third reading. After the report stage, the stage of passing of the bill is called the third place or third reading or third stage. At this stage, debate takes place only on the main features of the bill and not every aspect of the bill. In this stage, no changes are took place or no changes are made in the bill. If the bill is passed by the house, it is sent to another house under the sign of the speaker or chairman. Sixth, sending bill in the second house. When a bill is passed in one house, it is sent to another house. And the last stage is known as assent of the president. When bill is passed in both the houses, then it is sent to president for sign. After the sign of president, the bill becomes the law. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संसद में विधेयक किस तरह से पारित होता है. हमारा शीर्षक रहेगा संसद में विधेयक पारित होने की प्रक्रिया. आप सब जानते हैं संसद केंद्र सरकार के लिए कानून बनाती है. इसका अर्थ पूरे देश के लिए कानून बनाती है और सारे विषय जो केंद्र सूची में सम्मिलित हुए हैं. और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपातकाल में संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बनाती है. विधेयक संसद में पारित होते हैं और विधेयक दो प्रकार के होते हैं बेटा. एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है धन विधेयक. आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि साधारण विधेयक किसी भी सभा में पारित हो सकता है या किसी भी संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है. पर धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पेश किए जाते हैं. वो कभी भी राज्यसभा में पेश नहीं किए जाते हैं. ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. अब आप लोगों को विधेयक पारित होने की प्रक्रिया से पहले ये पता होना चाहिए कि विधेयक और कानून में क्या फ़र्क है. तो बेटा, विधेयक उसे कहते हैं जब विधेयक, आप एक तरह से कह सकते हो कि विधेयक कानून का एक प्रस्तावित रूप होता है जो संसद के पास विचार विमर्श के लिए जाता है. और जब तक संसद उसे मंजूरी नहीं देती है तब तक वो कानून में तब्दील नहीं होता है. तब तक उसे विधेयक कहा जाता है. अब अपनी प्रक्रिया शुरू होती है. प्रथम वाचन या विधेयक को पेश करना. जैसा मैंने आपको कहा कि विधेयक संसद का कोई भी सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य साधारण विधेयक को संसद में पेश कर सकता है. पर अगर राज्यसभा का सदस्य ये विधेयक पेश करता है तो 1 महीना पूर्व उसको नोटिस के साथ साथ उनके सदन के
सभापति या अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है और उसके बाद ही वो संसद में विधेयक पेश कर सकता है। इसे कहा जाता है प्रथम वाचन, या प्रथम वाचन में सिर्फ विधेयक का शीर्षक जो है उसका वाचन होता है और इसके बाद जब ये विधेयक संसद में पेश हो जाता है उसके बाद वह सरकारी मासिक में या वृत्तपत्र में प्रकाशित किया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैजेट। अब दूसरा चरण होता है जिसे हम कहते हैं द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में बेटा विधेयक की प्रत्येक प्रति प्रत्येक सदस्य को वितरित की जाती है और उसके प्रत्येक पहलू पर इस चरण में चर्चा नहीं होती है, सिर्फ उनके ऊपर चर्चा की जाती है जो इसके लिए बहुत आधारभूत होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ों पर इसमें चर्चा होती है और विधेयक में बदलाव के लिए सूचना इसमें नहीं दी जाती है। अब तीसरा चरण या तीसरी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं समितियां बनाना। ये महत्वपूर्ण चरण होता है क्योंकि इस चरण में विधेयक के सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलू पर विचार विमर्श किया जाता है और इस विचार विमर्श के लिए छोटी छोटी समितियां बनाई जाती है और हर समिति एक एक पहलू पर गहराई से अध्ययन करती है और ये जो समितियों का गठन होता है, उन समितियों के सदस्यों को अगर लगता है कि इसमें उन्हें इस विषय के विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए तो विशेषज्ञ की राय लेने का अधिकार या विशेषज्ञों से राय ये समितियां ले सकती है। समिति को ये अधिकार होता है कि वो चाहे तो विधेयक में सुधार कर सकती है। इसके बाद ये समितियां अपना प्रतिवेदन अपने अपने सभापति या अध्यक्षों को सौंपती है। फिर से यहाँ पे अगर राज्यसभा में पेश किया गया है तो सभापति को, और अगर लोकसभा में पेश किया गया है तो अध्यक्ष को वो अपना प्रतिवेदन सौंपते हैं। अब चौथा चरण होता है या चौथी स्टेज होती है जिसको हम कहते हैं प्रतिवेदन स्तर। प्रतिवेदन की प्रतियां अगर उसमें सुधार किया है तो सुधार के लिए दी गई सूचनाओं के साथ सभी सदस्यों को ये प्रतियां वितरित की जाती हैं। इस चरण में भी विचार विमर्श या वाद विवाद या दूसरे शब्दों में हम कहते हैं बहस की जाती है और फिर चुनाव की प्रक्रिया होती है और प्रतिवेदन अगले चरण में यानी तृतीय वाचन के लिए भेजा जाता है। अगला स्तर है बेटा जिसे कहा जाता है तृतीय वाचन। इस प्रक्रिया में विधेयक पर फिर से विचार विमर्श या बहस की जाती है, पर पूरे विधेयक पर नहीं, सिर्फ विधेयक के मुख्य बिंदुओं पर इसमें विचार विमर्श या बहस की जाती है। इस चरण में विधेयक में कोई बदलाव नहीं होता है। ये विधेयक अगर एक सदन में पारित कर दिया है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा ने पारित किया है तो लोकसभा में भेजा जाएगा और अगर लोकसभा ने पारित किया है तो राज्यसभा में भेजा जाता है। अब इसके बाद का होता है कि भाई विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना। मतलब इसमें ये होता है कि ये विधेयक अगर एक सदन में पारित कर दिया है तो दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहाँ पर भी पूरी प्रक्रिया दोहराई जाती है और फिर राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए भेजा जाता है और इसलिए आखिरी चरण होता है राष्ट्रपति की स्वीकृति। संसद के दोनों सदनों में विधेयक पारित हो जाने के बाद
राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। स्वीकृति का मतलब, राष्ट्रपति की स्वीकृति का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही विधेयक कानून में बदल जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और बताना चाहूँगी कि राष्ट्रपति के पास जब ये विधेयक पहुँचता है और राष्ट्रपति को अगर लगता है कि इसमें पुनर्विचार होना चाहिए या इस विधेयक में कुछ बदलाव होना चाहिए, तो राष्ट्रपति फिर से ये विधेयक सदन में भेज सकता है। पर अगर दोबारा सदन में उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है और विधेयक उसी रूप में अगर राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने ही पड़ते